واسطے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزوں، آج مجھے جو بیان کرنے کا موقع ملا ہے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایکچولی میں آپ کو ایک روحانی بات بتاؤں کہ پاسٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں کہ یہ ایک جو اسپرچولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ کوئی لیٹ سیزن نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کوئی دکھوں کے دن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے پاک صلیب پر بھی اس ڈاکو سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہمیں دکھ نہیں منانے بلکہ ہمیں خوش ہونا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر بھی نجات کا کام کیا، اور اس نے 40 دن جو روزے رکھے تو بیابان میں اس نے شیطان کو مار دی۔ آپ میرے عزیزوں اس بات کو سمجھے کہ یہ ہمارے لیے لیٹ سیزن نہیں ہے، کہ نہ ہم اس کو اس طرح منائیں کہ ہم کبھی کوئی ایسا محسوس کریں کہ ہم بڑے دکھوں میں نہیں۔ ہمارے لیے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے دکھوں کو ختم کیا ہے، اس نے نجات کا کام کیا، اور اس نے کہا تمام ہوا۔ میرے پاس آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو یسوع مسیح کا کلمہ ہے، وہ 5واں کلمہ ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ آپ میرے ساتھ نکالیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب، اور ہم پڑھیں گے اس کی 28 آیت سے۔ اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ 5واں کلمہ کہتے وقت خداوند کو صلیب پر سے 4 یا اس سے زیادہ گھنٹے ہو چکے تھے۔ یہ کام معمول کی بات ہے کہ بچہ اگر کھیلتے کھیلتے پیاس محسوس کرتا ہے تو وہ پانی کی طرف جاتا ہے۔ کسان گرمی میں کام کرتے وقت کرنے کے بعد تازہ دم ہونے کے لیے پانی مانگتا ہے یا پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح مسافر کے لیے اگر وہ منزل پر پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ ٹھنڈے پانی کو پینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی روح کو افزا ملے۔ پانی ایک نعمت ہے، اور ہرنی کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ ریگستان میں جہاں کہیں اس کو پانی ملتا ہے وہ پانی کے لیے بھاگتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پانی نایاب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے یسوع نے آپ کے اور میرے لیے دکھوں کو سہا، دکھوں کو اٹھایا، اور صلیب پر جب وہ انسان ہوتے ہوئے اس نے ہماری خاطر پاک صلیب پر ہمارے لیے ان دکھوں کو سہا، تو انسان ہوتے ہوئے اس کو بھی پیاس لگی، اور اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کمہار، وہ جس نے دریا اور سمندر بنائے، آج صلیب پر پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کمہار جس نے وہ برتن بنایا ہو، یا کہے کہ میرے پاس جو برتن ہے میرے عزیزوں، سوری، اور جسمانی درد اس میں کیا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ اب صلیب پر یسوع مسیح خداوند کو 4 یا 5 یا اس سے زیادہ گھنٹے ہو گئے ہیں، آدھی رات کے وقت جب وہ گرفتار ہوا، مذہبی عدالت میں قریباً طلوع آفتاب ختم ہوئی، پلاطوس کی عدالت میں وہ 6 سے 9 بجے تک اس سے زیادہ عرصہ رہا ہوگا۔ وہ دوپہر کے وقت صلیب پر کھینچا گیا، پانی پیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو کافی دیر پانی پیے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو کافی دیر ہوگی۔ خداوند نے غالباً بالا خانہ پر پانی پیا تھا۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جسمانی طور پر دیکھیں کہ ہم اگر تھوڑی سی پیاس ہم برداشت نہیں کرتے، ہم ایک روزہ رکھ لیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی
तो मेरे अजीजों देखें कि खुदा यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे और वहां भी इब्लीस को हराया, इब्लीस को मार दी, और उसके बाद सलीब पर भी उसने मौत से कहा कि तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे अजीजों, ये खुदा यीशु मसीह की कुदरत है जो हमें हर तरह से सलीबी दुखों में भी नई जिंदगी का रास्ता देती है। आए हम सब इस बात के लिए इकरार करें कि खुदा यीशु मसीह हमारी रूहों के प्यासे है। खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे और हर एक के लिए नजात का दरवाज़ा खुले। मेरे अजीजों, हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने जो 7 कलमे सलीब पर कहे वो मेरे और आपके लिए ज़िंदगी और नजात का सबब है। यीशु मसीह के अजीम नाम के लिए उसका शुक्र। सरों को झुकाएंगे और मैं भाई अनायत से कहूँगा कि वो दुआ में हमारे साथ रहनुमाई करेंगे। सारे कलाम को बातों को याद कर रहे हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह आपने ये सारे कलमात अदा किए और कहा कि मैं प्यासा हूँ, और हकीकत में आप हमारे प्यासे हैं। आप हमारी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि इब्तिदा ही से ये मंसूबे नजात का जो हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए था, जो बनाए आदम से माँ हवा से खता गलती हुई और फिर खुदा ने दोबारा इसको मंसूबे को हमेशा की ज़िंदगी के लिए बहाल किया और अपने इकलौते बेटे की के वसीला से हमें निजात दी, और वो निजात रहाई और हमारे लिए मखलूसी का बायस हुई। और आज वो हमारी जिस तरह वो दुनियावी लिहाज से उस वक्त प्यासा हुआ, आज वो हमारी लिए भी प्यास रखता है। आज हम भी उसके लिए प्यास रखते हैं ताकि हम भी उसके कलाम को हासिल कर सकें, उसके सारे कलमात को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के लायक बन जाएँ। क्योंकि उसका दुख सहना सब कुछ, ये सलीबी मौत पुकारा करना, कांटों पर दाग और मछली पर नेज़ा लग जाना, ये हमारे लिए हुआ ताकि हम रहाई पाएँ, हम अपनी सी पाएँ। खुदा हम सबको अब इस कलाम की प्यास करते ताकि हम इस कलाम को हासिल करने वाले बन जाए। खुदा हम यीशु मसीह को पहनने वाले बन जाए। खुदा हम यीशु मसीह की ज़िंदगी पर, उसके कलाम पर गौर करके उस पर अमल करने वाले बन जाए, ताकि हमारी भी ये प्यास पूरी हो और हमें हमेशा की ज़िंदगी के लायक बन जाए। तब हम सब पर रहम करे। आमीन आमीन। आए हम एक और गीत गाएंगे। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं। जो कुछ लगे तेरी खातिर, या वो तेरा दिलदार
आए मेरे जीजो, हम फतह का कलमा जो छठा कलमा है, बस वो सिक्का यीशु ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। ये छठा कलमा मैं चाहूंगा कि बाजी इरम वो स्टेज पर आए और इस कलमे को बयान करेंगे। उसी यीशु में मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को सलाम। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे छठा कलमा। बस वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। यूहन्ना की अंजील और 19 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है। फिर यूहन्ना के अंजील उसका 10 बाब और उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी जान कोई मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पाए। पहला ग्रंथियों 13 बाब में हम देखते हैं मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत रास्ते से खुश होती है, मोहब्बत सब चीज़ों से अफजल है। इसी तरह हम एक और हवाला देते हैं। खुदा के कलाम में मोहब्बत के बारे में यूँ भी लिखा है कि मत्ती 22 बाब और उसकी 37 आयत में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा, खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फिर हम गलतियों के खत में पढ़ते हैं, गलतियों 5 बाब और उसकी 14 आयत में यूँ लिखा है क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। फिर रोमियो 12 बाब और उसकी 10 आयत में हम देखते हैं मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी और इस तरह खुदा यीशु मसीह ने शरीयत को मुकम्मल कर दिया। आखिरी बात, खुदा क्या है? खुदा रूह है, खुदा हक है, खुदा नूर है और नूर हक और रूह दुरुस्त है। लेकिन ये उसकी लाजवाल मोहब्बत थी जो उसे गुनाहगार इंसान के पास खींच लाई और अपने आप को खुद मौत के हवाला कर दिया ताकि गुनाह के जोर को मिटा डाले। तमाम हुआ। ये कलमा अगरचा फतहमंदी का इजहार है मगर बड़े प्यार से फरमा दिया कि मेरा काम खत्म हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने वो कौन सा काम है जो ख़त्म कर दिया है, यानी रास पास ठहराए जाने का काम ख़त्म कर दिया, गुनाह को मिटाए जाने का काम ख़त्म कर दिया, शरीयत पर गालिब आने और शरीयत को मुकम्मल कर देने का काम मुकम्मल कर दिया। यूँ कह लीजिए कि उसकी मोहब्बत ने निजात के सारे दरवाजे खोल दिए और गुनाहगार इंसान का मिलाप खुदा से करवा दिया। यूँ उस खुदा यीशु मसीह का मिशन पूरा हो गया। ये तो सब है खुदा यीशु मसीह की खूबियाँ, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत। ये हम सब यानी कि उसकी मोहब्बत को हम सलीम पर देखते हैं कि किस तरह उसने लिखा
लिखा है कि जैसे मैंने पहले भी पढ़ा कि मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ यानी कि रास्ते से खुश होती है, मोहब्बत को जवाल नहीं। ये तो सारी खूबियाँ खुदा बाप की हैं, खुदा यीशु मसीह की हैं। और क्या आज हम अपनी जिंदगियों के बारे में गौर करें कि हम क्या करते हैं? क्या हम भी खुदा से वैसा ही प्यार करते हैं जैसा उसने हमसे प्यार किया है? क्या हमें सोचने की जरूरत है आज कि हम भी खुदा बाप से, खुदा यीशु मसीह से, पाक रूह से वैसा ही प्यार करें जैसा खुदा ने हमसे प्यार किया है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आज वक्त है कि अगर हम किसी से कह दें कि तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो, नहीं जी मिशन बदल जानी, नहीं जी फलाना ताने मेने देगा, पेड़ च टुरन जोगा नहीं रहना, ऐसी बात नहीं है। खुदावंद हमें जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है, उसी के लिए हमने जीना, उसी के हुक्म मानने हैं, उसी के लिए हमने जीना है, उसी के लिए हमने मरना है जैसे वो हमारे लिए मर गया। तो हम भी उसी के वास्ते जिए, जैसे उसने हमसे मोहब्बत रखी वैसे ही हम भी उससे मोहब्बत रखें। हमें भी आज चाहिए कि हम किसी से डरे नहीं कि कोई हमें क्या कहेगा, मिशन बदल रही है, फलान हो गया, फलान ठीक, ऐसे हो गया, वैसे हो, ये नहीं सोचना। हमने यीशु मसीह की तरफ देखना है, उसकी अजीम मोहब्बत को देखना है और उसकी राहों पर चलना है, उसके पीछे चलना है और खुदावंद के रास्तों पर चलना है। और किसी का डर खौफ हमारे दिल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जैसे उसने हमसे मोहब्बत रखी है वैसे ही हमारा भी काम है कि उससे भी हम वैसी ही मोहब्बत रखें। उसकी खूबियाँ तो बता दी, अब हम में कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं, हमें भी यही खूबियाँ पाई जाए कि हम भी उससे दिलो जान से, अकल ताकत से उससे मोहब्बत रखें, तो खुदावंद को वैसा ही प्यार करें। उस जीना है तो उसके लिए, यीशु मसीह के लिए जिए जिसने हमसे प्यार किया, हमारे लिए अपनी जान दी। मरना है जैसे वो हमारे लिए सलीब पर मर गया, मरना है तो उसी के लिए मरे जो हमारी खातिर मर गया। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत। आइए हम भाई पॉल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, अजीम और बाबरकत खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा तेरे कलामात जो बयान किए जा रहे हैं, खुदा इसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तूने जो हमारे लिए सलीब पर कफारा दिया, खुदा इसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा तूने हमसे मोहब्बत रखी, इसके लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा तू कादिर मुतलिक अजीम बाप है। खुदा तू अपने लोगों को उनके दिलों में अपना प्यार डाल, ताकि खुदा जिस तरह तूने वफादारी से अपने लोगों से प्यार किया, ये भी खुदा वफादारी से तुझसे प्यार करे, तुझे धन्यवाद करे, तुझे सजदा करे, तेरी तारीफ और हम करे। ये सब कुछ मान लेकर आइए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा का जो 7वां कलमा है, ये खुदा और इंसान की मिलाप का कलमा है। और इसमें हम अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश करेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने कीमती लहू बहाकर खुदावंद आज हमें इस लायक ठहराया कि हम तेरे कदमों में आए। आए हम खुदावंद के इस प्रस्तश में भाई लाजर के साथ मिलकर प्रस्तश करेंगे। हालेलुया। आंसू है कलवरी